हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह आज आपको 12th स्टैंडर्ड का यहाँ से रिविजन लेक्चर चालू कर रहा हूँ। नाउ फर्स्ट थिंग इज सर, आपने पहले इन बिटवीन क्यों नहीं किया? वी सी लॉट ऑफ पीपल हैव द प्रीलिम एग्जाम्स एंड आई वाज वांटिंग कि एक बार आपका प्रीलिम एग्जाम खत्म हो जाए, सो यू विल हैव द इश्यूज, यू विल हैव द डिफिकल्टीज एंड देन इफ आई कम अप विद द सॉल्यूशन you will adapt and accept them all. Now second question is was what to expect from the current revision batch. What I would be doing is accounts, eco, OCM, SP, if possible even maths and English, all 6 paper. I would be talking about your important questions, I would be talking about the paper pattern, and I would even how to write the answers. Now you can trust me in all these things because I have been doing this for the last 9 years and there are many students, maybe more than 200 students who have got very good marks in terms like there are many more than 20-30 students above 19 accounts, 99 being highest. Eco, there are many students who have got 94, 93, 95, OCM same way, SP same way, 94, 95, and each year I have been getting these results. Maybe I will show you the results in the subsequent year, but more than that, let's talk about what is the coming year about. So in this basically today's lecture in short 10 to 15 minutes I will try to explain you the questions, paper pattern questions on what you need to focus on and what is the smartest way to get the maximum marks. So friends, let's move ahead. First question is understand the time management and paper pattern. See friends, regarding time management I would be telling you most important time management is about accounts. See how much time you have, 60 minutes into 3 which is 180 minutes you have, and marks is 80. So friends, if you see how much time to be allotted for 1 marks, time for 1 marks is nothing but 180 divided by 80. If you go average 2 minutes is what, मतलब ज़्यादा टाइम देख लो, आपको 1 मार्क के लिए 2 मिनट, तो अगर वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना मिनट देना चाहिए? 40. बट अगर तुमने टाइम सेव किया तो आगे जगह आपको आएगी. अब बच्चों आगे चलते हैं. अंडरस्टैंड हाउ मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अब टाइम के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज सिर्फ अकाउंट्स को लेके बहुत लोग को इशू होता है. वो बहुत स्लोली क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 सॉल्व करते और लास्ट को पता चलता आधा 1 घंटा बचा है और 3-4 क्वेश्चन पेंडिंग, और फिर लास्ट के क्वेश्चन कवर अप नहीं होते. किसी का टोटल नहीं होता, किसी का टैली नहीं होता, किसी के बड़े क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं. तो ये सब इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट ऑफ द टाइम. अब बच्चों अगर टाइम को एफिशिएंटली एक्टिवेट करना तो सबसे बेस्ट चीज़ है एटलीस्ट 2 से 3 पेपर सॉल्व करना. अब कमिंग हेड पेपर पैटर्न को देख लो बच्चों. हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव इज क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 in board. You have question 4, question 5, question 6, and the last that you have is question 7. There are altogether how many questions to be solved out? 7 questions to be solved out. Next step ahead friends, understand question number this is of 12 marks. It's on partnership approach. Question number 1 is objective friend. It is 20 marks. A reason for having objectives. Why do people in all the accounts paper why do they have objectives? तो मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि पास हो जाए. Even board wants 80-90% of the students should pass out. तो पास होने का सबसे इजी फॉर्मेट क्या भाई? ऑब्जेक्टिव तो आना ही चाहिए एंड इट इज वेरी इजी. 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे. बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, बाकी 2 or 4 fill in the blank and 1 word. We would be trying to cover up that also. Today I would be only discussing about the paper pattern and format, and I also have a question paper where I will be discussing on this basis what kind of questions would be asked. So boss, question 1 is on 20 marks. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों जो आ रहा वो आ रहा है एडमिशन. नाउ सी, उससे पहले नाउ सी आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि 2 ऐसे क्वेश्चन है जो जर्नल एंट्री बेस्ड है और बहुत इजी है. वो कौन से? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का और ये क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स का फ्रेंड्स. क्लब टुगेदर 18 मार्क्स. इट इज ऑन व्हाट? इट इज टोटली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री. और जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल है. मतलब बच्चों देखो, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के हो गए, जर्नल एंट्री 18 हो गए, 20 18 38 आप पास हो गए, और क्या चाहिए? बाकी क्वेश्चंस भी बहुत इजी है. अब आगे चलते हैं बच्चों. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज. अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, इट इज
बिल ऑफ एक्सचेंज, और क्वेश्चन नंबर 4 इट इज ऑन कंपनी अकाउंट्स। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज और कंपनी अकाउंट्स के जर्नल एंट्री आपको समझने हैं बस, जो कि मैं आपको लर्न करवा लूंगा, यहाँ से रिवीजन चालू करना, मैं ये पूरा कवर अप कर लूंगा। नेक्स्ट स्टेप आ रहा है बच्चों, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब पार्टनरशिप रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन और रिटायरमेंट, इट इज 10 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इट इज 8 मार्क्स का क्वेश्चन, इट इज ऑन डेथ। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इट इज फाइनल अकाउंट। उस एनपीओ में 12 मार्क्स का क्वेश्चन है और फाइनल अकाउंट भी 12 मार्क्स है। अब बच्चों एक बात देखो, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7, इन सब में एक चीज कॉमन है, मालूम क्या? सब में बैलेंस शीट बनाना है। बेसिकली सब में इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट बनाना, मतलब एक तो आपको प्रॉफिट लॉस कुछ जगह ढूंढना है और कुछ जगह आपको बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट तो बड़ा सिंपल है ना, बैलेंस शीट इज व्हाट लायबिलिटीज एंड असेट्स। अब यार एडमिशन को कर लो, डेथ को कर लो, या एनपीओ कर लो, या फाइनल अकाउंट, सब में बैलेंस शीट आ रहे हैं, एवरीवेयर इट्स कॉमन। अगर तुम पूछोगे सर अब बैलेंस शीट यहाँ कितने मार्क्स का आ रहा है, तो 4 मार्क्स का, यहाँ कितने मार्क्स का आ रहा है, ये भी 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 में बैलेंस शीट कितने मार्क्स का, 6, और पार्टनरशिप में 6, टोटल 20 मार्क्स की बैलेंस शीट है। आई एम ट्राइंग टू सी बच्चों, अपने पास टाइम बहुत कम है, यहां से मुझे आपको स्मार्टेस्ट तरीके से बताना कि कैसे आप 80 on 80 लाओ, 70 लाओ, 60 लाओ और आराम से पास हो जाओ। You see, right now I'm preparing my video. I need to cover up all the students' problem. There are certain students for whom account is tough and they just want to pass. Some students are like they know 50-60% थोड़ा और अच्छा हो जाए. Some people are like sir full marks मिलना चाहिए but confident भी रहना चाहिए. So my video objective is to increase your confidence, to increase your marks and solve all people's problem, all students' problem. तो बच्चों बेसिकली हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव, 7 क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन में किसको कितना टाइम दो, कैसे बैलेंस करो, वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में चालू करेंगे। अभी तो फिलहाल हमको क्या करना है, ये पेपर देख लेना है। तो कितने क्वेश्चंस टोटल आए, 7 क्वेश्चंस आए। क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव्स, यार फिल इन द ब्लैंक, 1 वर्ड, ट्रू और फॉल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट शॉर्ट आएगा, 100% आएगा। दूसरा क्वेश्चन एडमिशन रिटायरमेंट, यार एडमिशन रिटायरमेंट कॉमन क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज कॉमन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज कॉमन, बैलेंस शीट इज कॉमन, सिर्फ कंसेप्ट थोड़े डिफर हो रहे हैं। एडमिशन में बंदा आता है, रिटायरमेंट में बंदा जाता है, तो आएगा तो गुडविल कैपिटल लाएगा, रिटायरमेंट में गुडविल कैपिटल लेके जाएगा, बैलेंस शीट तो वही है। सो यू हैव एडमिशन, यू हैव डेथ, डेथ में भी रीवैल्यूएशन ही आ रहा है, दोनों में कॉमन रीवैल्यूएशन है, और फिर उसमें भी बैलेंस शीट, इसमें भी बैलेंस शीट, उसमें भी पार्टनर कैपिटल, इसमें भी पार्टनर कैपिटल। तो बच्चों एक बात याद रखना, पेपर को ना सी इफ यू सिट एंड सॉल्व ईच एंड एवरी सम्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक, मे बी यू कैन गेट कंफ्यूज, मे बी आपके पास टाइम ना हो, मे बी आपको समझ में ना आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कमिंग विद सम स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी वेयर विद दिस प्रोसेस यू विल बी, आई एश्योर यू विल स्कोर मोर देन 60-70 आउट ऑफ 50 आई एम टॉकिंग। देखो जो ओरल भी आपका असाइनमेंट 20 मार्क्स का है, वो आपको कॉलेज अच्छे से मार्क्स दे देगा, प्रैक्टिकल टाइम में सबमिट कर दो, वो मोस्टली ही विल गिव यू द मार्क्स। बट जो 80 मार्क्स का पेपर है उधर थोड़ा इशू है, उसमें मैं आपको हेल्प करने आया। अब आ जाते हैं बच्चों, अंडरस्टैंड, सी क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव कितने टाइप के क्वेश्चन है, एक है आंसर इन 1 वर्ड, और नहीं तो आंसर इन 1 वर्ड, वेरी सिंपल। दूसरा आ जा रहा है मे बी ट्रू और फॉल्स, तीसरा आ जा रहा है फिल इन द ब्लैंक और कंप्लीट द सेंटेंस, और चौथा बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। फ्रेंड्स दिस इज वेरी इजी, फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल है यार। अब यार ये क्वेश्चंस मैं अभी लर्न करवा लूंगा आपके, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, तुरंत लर्न कर लो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट में क्या है, 5 मार्क्स का है, टाइटल से देना, क्या टाइटल है, बिल ऑफ एक्सचेंज।
उसके बाद बच्चों स्टैम्प लिख दो। उसके बाद अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेट्स से जो भी है, यहाँ एड्रेस लिख दो, डेट लिख दो। अब ये सब कुछ दिया है क्वेश्चन में, ओके, इट्स ऑलरेडी गिवन। सो इफ यू सी दिस, डेट लिखना है आपको, लेट्स से आज का डेट लिखते हैं 15 मार्च 2021। अब उसके बाद बिल ऑफ चेंज की एक लाइन है जो तुमको याद करनी। अभी मैं समझा रहा हूँ, 2-4 बार रिपीट करूंगा, रिवाइज करूंगा, आपको याद हो जाएगा यार। पेमेंट करना है तुमको, 2 महीने बाद पेमेंट करना, तो लाइन लिख दो बच्चों, वेरी सिंपल लाइन इट इज। व्हाट्स द लाइन? 2 months after the date paid to me or my order, the sum of rupees 50,000 only for value received। बच्चों ये लाइन है कि 2 महीने बाद मुझे या मेरे आदेश पे 50,000 रुपए दो। क्यों? क्योंकि आपको कुछ मिले। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ ड्रॉई का एड्रेस लिखना है, ड्रॉई का नाम और ड्रॉई का एड्रेस, यहाँ आपको एक्सेप्टेंस करना है और यहाँ आपको सिग्नेचर करना है। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। अब यार इधर आपको 5 मार्क्स फ्री में मिल रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स आई विल ट्राई टू कवर अप मैक्सिमम थिंग। ऑब्जेक्टिव देखो, अगर लॉजिक से देखा जाए 2 मिनट इंटू 20, 40 मिनट ऑब्जेक्टिव को देना चाहिए, बट मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ आपको टाइम बचाना और फुल मार्क्स लेके आना। मैं आई विल ट्राई टू कवर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, जस्ट गो थ्रू दोज ऑब्जेक्टिव, विल फाइंड आउट दीस थिंग्स आर देयर इन द क्वेश्चन पेपर। अब आगे चलते हैं बच्चों, फिर 18 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री है बच्चों, और ये कंपनी अकाउंट्स की जर्नल एंट्री है। अब यार 2 क्वेश्चंस है जो जर्नल एंट्री बेस्ड है, मतलब कंसेप्ट समझो, जर्नल एंट्री याद करो, रिपीट रिवाइज करो, आपको 8 मिल जाएंगे। और क्वेश्चन बड़ी सिंपल है, जर्नल एंट्री। See, today I am not here to teach the chapter. I just cannot do this in this short span of time. I am trying to cover up your question papers. What questions board will ask and how you have to write it down. And I will try to cover up maximum question. अब यार बिल ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्री 10 मार्क्स की, इसमें 8 मार्क्स की। अब यार ये तो बड़ा सिंपल है। देखो एक बात बता रहा हूँ, 1 हफ्ता ऑब्जेक्टिव दो, 20 मार्क्स हो गए। 1 हफ्ता ये दो जर्नल एंट्री लर्न कर लो, इस रिलेटेड सम सॉल्व कर लो, ये 2 क्वेश्चन हो गए। और मैं आपको बोल रहा हूँ जर्नल एंट्री लर्न करके पेपर क्या सॉल्व करो, 2014 से 2019 इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो बच्चों। बिल ऑफ एक्सचेंज और कंपनी अकाउंट्स का 2014 से 2019 तक या 20 तक, कंपनी अकाउंट्स का नहीं सॉल्व कर सकते। थोड़ा सा कैसा है, पहले क्वेश्चन और ज्यादा आते थे, अभी थोड़ा कंपनी अकाउंट्स में शॉर्ट कर दिया। पहले क्या था, शेयर का था, डिबेंचर का था, प्रेफरेंस शेयर का था, इक्विटी शेयर का था। अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इक्विटी शेयर्स में है, तो ठीक है ना, मैं कवर अप कर लूंगा, टेंशन क्या। अब बच्चों एक सिंपल से बात समझो, कंपनी अकाउंट्स में है क्या यार, बहुत सिंपल है। शेयर इशू की, जैसे इसकी एंट्री, शेयर इशू किया जा रहा है। शेयर इशू करोगे तो क्या है, कैसे इशू करोगे, एक शेयर इशू करोगे तो उसके अंदर पहला कंसेप्ट आता है, अगर मैं 1000 शेयर इशू कर रहा हूँ तो लोग क्या करेंगे, पूरे 1000 बाय करेंगे, 900 शेयर्स बाय करेंगे। अब यार अगर तुमने 1000 शेयर इशू किया, 1000 बाय किए, 900 बाय किए, और नहीं तो हो सकता है 1200 शेयर्स बाय किए, इसको क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आने वाले क्वेश्चन, और 1200 तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जो पैसा आएगा, एक शेयर की चलो कीमत है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर बच्चों, एक शेयर की क्या कीमत है, लेट्स से 10 रुपए या 100 रुपए। अब 100 रुपए एक शेयर की कीमत है, तो जो पैसा आएगा वो एक साथ नहीं आएगा,
रियल लाइफ में पैसा एक साथ आता है, जब भी कंपनीज का आईपीओ आता है लोग एक शॉट में पैसा देते और शेयर बाय करते, बट यहाँ नहीं, यहाँ आपको पैसा इंस्टॉलमेंट में लेना है। अब जो शेयर का पैसा आएगा बच्चों कैसे आएगा, पहला आएगा एप्लीकेशन, दूसरा आएगा अलॉटमेंट, तीसरा आएगा फर्स्ट कॉल, चौथा आएगा सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। अब यार इसकी एंट्रीज आपको सिर्फ पास करनी, सी आई एम राइट नाउ इन माय फर्स्ट लेक्चर, आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज द फॉर्मेट, देयर आर ऑल टुगेदर 7 क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू अरेंज दोस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव को आप अलग एंगल से ट्रीट करो, और उसके बाद जो आपके 18 मार्क्स की जर्नल एंट्री है, बिल ऑफ चेंज एंड कंपनी अकाउंट, उसको आप अलग एंगल से ट्रीट करो, दोनों को कंबाइन मत करो। कंपनी अकाउंट्स की एंट्री क्या है सर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन की एंट्री बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा आया बैंक टू अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल की बड़ी सिंपल एंट्री है बच्चों, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और आ गया तो बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल की एंट्री बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट टू सेकंड कॉल। अब आई विल राइट द एंट्री, आई विल एक्सप्लेन दोस एंट्री एंड आई विल सॉल्व सर्टेन सब्जेक्ट। ये तो आपका कंपनी अकाउंट हो गया। फिर बिल ऑफ चेंज में क्या है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर। बायर के बुक्स में सिर्फ 5 एंट्री, बायर खरीदता है, बिल एक्सेप्ट करता है, ऑनर करता है, डिसऑनर करता है, नोटरी चार्जेस देता है। बायर खरीदा, परचेज टू सेलर, एक्सेप्टेड सेलर टू बिल पेबल, ऑनर बिल पेबल टू कैश, डिसऑनर बिल पेबल टू सेलर, नोटरी चार्ज टू सेलर, खत्म। अब सेलर की बुक्स में एंट्री, सेलर पहले सेल करेगा, फिर बिल रिसीव करेगा, फिर बिल के साथ ट्रीटमेंट होंगे, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स, सेंड फॉर कलेक्शन, उसके अंदर ऑनर एंड डिसऑनर। डोंट वरी, आई कवर इट अप। तो 2 क्वेश्चंस हैं 18 मार्क्स के जो आपका जनरल एंट्री बेस्ड है। तो यार 20 और 18 38 हो गए। अब उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, जो क्वेश्चन पेंडिंग है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें सब में कॉमन क्या है ये देखो, सब में कॉमन है बैलेंस शीट। यार इसमें बैलेंस शीट 4 मार्क्स का, इसमें 4 मार्क्स का, इसमें 6, इसका 6। बैलेंस शीट को समझ लो ना, कंसेप्ट समझ लो, उसके आइटम याद करो, क्वेश्चन से सिर्फ आइटम लिखने हो उधर बस। अब भाई बैलेंस शीट ऑलरेडी तुमको पता है क्या है, बैलेंस शीट इज नथिंग, व्हाट इज बैलेंस शीट फ्रेंड, तो आपको पता है देयर इज लायबिलिटी, देयर इज असेट्स, यहाँ अमाउंट है, यहाँ अमाउंट है। सो फ्रेंड बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सी आज मैं एकदम शॉर्ट समरी में बेसिक्स आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, आगे जाके आई विल ट्राई टू कवर अप मैक्सिमम थिंग्स। आर यू गेटिंग दिस? आज बेसिकली मैंने आपको क्या किया, पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव बताया, फिर मैंने बताया 10 और 8 मार्क का जर्नल एंट्री है, उसमें मैं आपको जर्नल एंट्री समझाऊंगा, जर्नल एंट्री लर्न करवाऊंगा और बोर्ड के 5 साल के पेपर सॉल्व करूंगा, और मैं बोलूंगा बस यही आएगा, उतना सॉल्व करो, डन। फिर बाकी जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। भाई इनकम मतलब ट्रेडिंग पीएन, नहीं तो रीवैल्यूएशन, नहीं तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे क्या ढूंढना, एक ही चीज, प्रॉफिट लॉस। और फिर दूसरा उन सब में कॉमन क्या है बॉस, बैलेंस शीट है। लायबिलिटीज असेट, लायबिलिटीज का एकदम फिक्स होते हैं, कैपिटल हमेशा आता है, क्रेडिटर आता है, बिल पेबल आता है, बाकी क्या, बैंक लोन और आउटस्टैंडिंग। असेट्स, असेट्स क्या है, किसी का धंधा ले लो, असेट सेम ही हो यार, धंधे में असेट्स क्या होगा, लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, फर्नीचर होगा, मशीन हो, क्यों, क्योंकि इसके बिना धंधा चलते ही नहीं, तो ये असेट्स रहेंगे ही रहेंगे, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। सो शॉर्ट, in short friends, if you see this in short 20 minutes I try to explain you the question paper format, how many questions you have. Second, I am trying to explain you what, where you need to focus, where you need to focus. First, divide it into objective, 1 question, 2 questions are on journal entry, company account and bill of exchange, and then the other question which are linked, related to each other, like admission, death and partnership final account, all are related to each other. In that you have to prepare common balance sheet in all of them and other things. Friend, this I would be taking all this individually, the questions, important paper pattern, how to get maximum in the subsequent lecture. This last request, if you really find this video value to you, so do subscribe the channel and share with maximum 12 standard student, because I know they need,
and I know I can help them. Not only with accounts, with all other subjects like ECO, CMSP. In short span of 1 month, friend, I assure you, you will know the paper and I will surely increase your confidence. Stay tuned for the next videos.